القدسیہ محترم ضل احمد نظامی صاحب، جنہوں نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا اور اس کے روح رواں اور ان کے معاونین، تمام حضرات و خواتین، دو تین باتیں بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ میں جب آیا تو ایک میرے ساتھی نے یہاں آ کر نعت شریف پڑھی تھی، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ یقیناً اس نے بڑی محبت سے پڑھی، آواز بھی بہت اچھی تھی، مگر میں چاہوں گا کہ یہ نعت شریف آپ نہ پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس میں ادب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت حوا، حضرت مریم کے نام یوں پکارے گئے جیسے آپ کسی عام خاتون کو پکارتے ہیں، اور پھر آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگیں دعا ہو گئی قبول۔ کون سی دعا تھی جس کا وہ نتیجہ تو خلاف واقعہ بات بھی ہے، تو ہو سکے تو اور کوئی اچھا کلام پڑھ لیں، اس میں ادب نہیں ہے، اس سے بچیں۔ ہمارے جو کمپیئر تھیں انہوں نے حدیث شریف بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کا انگریزی میں ترجمہ کیا، لیکن اخلاق کے لیے کیریکٹر کا لفظ یوز کیا انہوں نے۔ وہ بہتر سمجھتی ہیں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اس وقت نہیں ہوں، چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ان سے گزارش کہ اس پہ غور کیجیے گا، کیونکہ پھر ہم کردار کو کیا کہیں گے اگر اخلاق کو بھی کیریکٹر کہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ پیس بی اپون ہم نہیں ہے، یہ علیہ السلام کا ترجمہ ہے۔ Allah's peace and salutation be upon him، یہ ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تلفظ لازمی بات ہے، ہم لوگ سبھی کمزور ہیں، کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شیلے مقرر آئے تھے ماشاءاللہ بڑی تیاری تھی، بڑی خوشی ہوئی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبوت سے قبل انہیں جانور اور پرندے سلام کرتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے۔ نبوت سے پہلے تو نبی تھا ہی نہیں، اور نبی جب تک نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میرے نبی سے ہی کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، تو یوں کہیے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی پروفٹ ہوڈ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے۔ ایک ذکر کیا جاتا ہے امیر حمزہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ جو امیر حمزہ کی داستان ہے، یہ ایک عراق کا شخص تھا جس کا قصہ ہے، یہ حضور کے چچا یہاں مراد نہ لیے جائیں، وہ سید الشہداء، یہ جو زنبیل عمر عیار وغیرہ جو لیا جاتا ہے، یہ اس کا قصہ ہے، حضرت حمزہ اور ہستی ہیں۔ اور وہ دوست عمر بن ہشام کہتے رہے، ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا، عمر کے آگے واو لگائیں تو اس کو عربی میں عمر پڑھا جاتا ہے، اس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ پھر ایک دوست نے یہ بھی کہا، اور ابھی بھی کہ حیات طیبہ پہ روشنی ڈالیں، ہم کون ہوتے ہیں روشنی ڈالنے والے، ہم تو اس سے روشنی لیتے ہیں، تو ہم اس پہ روشنی ڈالتے نہیں ہیں۔ اور میرے پیشرو مقرر پتہ نہیں کیوں تشکیک کا شکار تھے، فرمانے لگے کہ شاید یہ بات ٹھیک ہے، سچ ہے، کہ محمد سے وفا، تو اس میں شک نہیں ہے، اس میں تو یقین ہے کہ ایسا ہی ہے۔ آیت انہوں نے پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ خدا نخواستہ میں نے اصلاح کی غرض سے نہیں کہی ہے، صرف اس لیے کہ غلط میسج نہ چلا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس لیے کہا کہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے آیت یہ پڑھی تھی، انہوں نے اس کے لیے میسج رکھا۔ میں اس آیت کو بہت مختصر سے وقت میں سمجھانے کے لیے یہی پڑھی ہے میں نے۔ وما، واو کا ترجمہ ہوا اور، ما یہاں نافیہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ میم الف ما کئی قسم کا ہوتا ہے، یہاں نافیہ یعنی نفی کر رہا ہے، نہیں مانے ہوں گے، اور نہیں ارسلنا کا بھیجا،
आपको, अब तर्जमा हो गया, और नहीं भेजा आपको इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनाकर आलमीन के लिए। बामुहावरा तर्जमा यूं होगा कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप लोग बहुत अच्छी ग्रामर जानते होंगे कि नो के बाद बट आ जाए तो एक्सेप्शन हो जाता है। यहाँ पहले माँ नो है, फिर इल्ला यानी बट, तो हुजूर रहमत बनकर आए अल आलमीन के लिए। अल आलमीन किसको कहते हैं? अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो अल आलमीन है, और मेरा नबी उसके लिए रहमत, और आपका रहमत होना जेहते रिसालत, रसूल होने की वजह से। तो पता चला जहां खुदा की खुदाई है वहां मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। एक बात। दूसरी बात, अरसलना का फरमाया, खलकना नहीं फरमाया कि हमने बनाया। यहाँ भेजने का जिक्र है, और भेजी वही चीज जाती है जो होती है। भेजी वही चीज जाती है जो होती है, तो भेजने का जिक्र है। 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं कब से ये कोई नहीं बता सकता। सिर्फ इतना कह सकते हैं सारी कायनात से पहले उसकी मुद्दत कितनी है वो कोई नहीं जानता। तो ये तशरीफ आवरी का जिक्र है, इसी को तो मीलाद कहते हैं। जहां नबी की आमद का जिक्र हो, तशरीफ आवरी का जिक्र हो, उसी को तो मीलाद कहते हैं। और फिर जब किसी को बुलाना हो, आपने मेहमानों को बुलाना था, कालीन बिछाए, शामियाना लगाया, ये फूल वगैरह सजाए, यहाँ कितने उन्होंने गुलदस्ते रखे, ये सीखा कहाँ से है सजाना? किसने सिखाया? अल्लाह ने भी अपने हबीब को लाना था, ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, सूरज चांद सितारों के कुमकुमे लगाए, सब्ज़ाज़ार और कोहसार सजाए, क्योंकि किसी को लाना था। सुभान अल्लाह। पता चला जब किसी को लाना हो तो सजावट की जाती है, एहतमाम किया जाता है। जिसको एहतमाम पसंद नहीं, समझ लें वो फितरत को पसंद नहीं करता, और जो फितरत को पसंद ना करे यकीनन अपर चैम्बर इज एम्प्टी, उसका ऊपर वाला खाना जरूर खाली होगा जो पसंद नहीं करता। ये तो कायनात की नेचर है। तो ये अल्लाह के हबीब की आमद। मैं उलमा से तायीद चाहते हुए मैं गलती करूं, इसलाह फरमा दें। अब रहमत है नबी पाक, यहाँ मफ़ऊल लहू माने या हाल, ग्रामर जो जानते हैं अरबी वो समझ लें। मेरे नबी पाक राहिम करार पाए। इस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ, तो आप रहमत के लिए मफ़ऊल लहू माने, हाल माने, तो नबी राहिम अल आलमीन के लिए। और ये कानून है, इज़ा सबत शैउ सबत बिजमीइ लवाज़िमिही, कि जब कोई चीज़ साबित होती है अपने लवाजिम के साथ साबित होती है। निज़ामी साहब बैठे हैं, एक हाथ यूं कर दें और ये कहें कि ये हाथ निज़ामी है, तो आप मानेंगे? क्योंकि सिर्फ हाथ को ज़िल्ले अहमद निज़ामी नहीं कहेंगे। उनके किसी एक अज़्व को, बॉडी पार्ट को अगर वो कहें कि ये निज़ामी है, नहीं, क्योंकि जब मैं कहूँगा ज़िल्ले अहमद निज़ामी तो सर से लेकर पाँव तक एक वजूद सामने आएगा। मैं कहूँ ये मकान है तो छत भी होगी, दीवारें, दरवाज़ा, खिड़की, यानी कोई भी चीज़ साबित होती है अपने लवाजिम के साथ, जो उसकी नेसेसिटीज़ है उसके साथ साबित होती है। तो मेरा नबी रहमत बनकर आया अल आलमीन के लिए। तो जो राहिम हो, जो रहमत हो, उसके लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं, इस पे भी गौर करना होगा, क्योंकि वो साबित करना है उनको। तो अब राहिम के लिए 4 बातें ज़रूरी जो रहमत बनकर आया। अगर उसमें 4 बातें
पाई जाएंगी तो वो रहमत होगा, नहीं पाई जाएंगी तो एतराज होगा। पहली बात, राहिम का जिंदा होना जरूरी है। मुर्दा तो खुद काबिल रहम होता है, जो राहिम है, जो रहमत है, उसके लिए जिंदा होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, जिसके लिए रहमत है उससे बाखबर होना जरूरी है। अगर बाखबर नहीं है तो रहमत नहीं कर सकता। तीसरी बात, उसके करीब होना जरूरी है, दूर हो तो रहमत नहीं कर सकता। चौथी बात, रहमत की कुदरत और ताकत होना जरूरी है। ये चार बातें हैं, जिंदा हो, बाखबर हो, करीब हो, कुदरत रखता हो। मेरे नबी को रहमत बनाने वाला रब ताला है, वो खुद से रहमत नहीं, रब ताला ने बनाया। अब ये चारों बातें उनमें माननी पड़ेंगी, नहीं मानेंगे तो रहमत होना साबित नहीं होगा। और एक बात और सुन लीजिए, जरूरत पहले होती है, जरूरतमंद बाद में होता है। हमें जमीन की जरूरत अल्लाह ने पहले बनाई, गजा की जरूरत गजा पहले है, हम बाद में है, क्योंकि जरूरत पहले होती है, जरूरतमंद बाद में। रहमत जरूरत है अल आलमीन की, अल आलमीन बाद में है क्योंकि जरूरतमंद है, और मेरे आका रहमत है इसलिए अल आलमीन से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कानून है। आइए उन चार बातों पर जो मेरे पास मुख्तसर सा टाइम है बात कर लूं। जिंदा, अब नबी की जिंदगी अहले ईमान से तो छुपी नहीं हुई। मौत किसको कहते हैं, जिंदगी किसको कहते हैं, अगर ये हमें समझ आ जाए तो पता लग जाए कि मुर्दा किसको कहते हैं, जिंदा किसको कहते हैं। हमारे यहाँ हयात का तसव्वुर, अगर कोई ये कहे कि जिस्म में रूह का होना जिंदगी है, तो अल्लाह की जिंदगी कैसे साबित करेंगे, उसका तो जिस्म ही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि जिस्म में रूह होना हयात है, तो फिर अल्लाह की जिंदगी कैसे साबित करेंगे, उसका तो जिस्म ही नहीं है। तो हयात को समझे, हयात आदी क्या है, हयात हकीकी क्या है, मौत क्या है, उसको पहचाने। मेरा नबी बरज़ख में जिंदा नहीं है, मेरा नबी हकीकी हयात के साथ जिंदा है। और उनकी हयात किस दर्जे की है, कभी आपको मौका मिले तो इस मौजू पर किताबें मौजूद हैं, वरना मेरे वालिद साहब की किताब ज़िक्र जमील में छोटा सा एक चैप्टर है, वही पढ़ लीजिएगा। सिर्फ इतनी बात कर दूं, आपने घड़ी पहनी हुई है, आजकल क्वार्ट्स घड़ियां हैं, सेल से चलती हैं। सेल, इस घड़ी की जान, ये घड़ी एक जिस्म और इसकी जान वो बैटरी सेल निकाल दूं तो घड़ी चलेगी? प्लीज नहीं, जवाब दे दें, चलेगी? 10 साल तक बाहर रखूं, चलेगी? नहीं। डालूंगा वापस, चलेगी। तो वो जान है, तो जान के बगैर इतना सा जिस्म नहीं चल रहा, ये पूरी कायनात जान के बगैर कैसे चल सकती है? सुभान अल्लाह। और इस कायनात की जान मैं नहीं, रब के फरमान के मुताबिक प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे मेराज की रात जब इस कायनात से निकले, हर चीज रुक गई थी क्योंकि जान निकल गई थी। जब वापस आई, जो चीज जहां रुकी थी वहीं से फिर जारी हो। सुभान अल्लाह। टाइम नहीं है वरना मैं फैलाता, और ज्यादा मुश्किल मैं नहीं कर रहा। सिर्फ एक बात आपसे, मुझे गौन कर दीजिएगा शफी साहब, आप लोगों ने कभी ना कभी नमाज जनाजा पढ़ी होगी। हो सकता है कुछ लोग मुझे ये जवाब देना चाहें, जनाजा क्या, हमने वैसे नमाज नहीं पढ़ी, जनाजे की कहां से पढ़ेंगे। खैर, नमाज जनाजा पढ़ते हुए हमारे दरमियान मौजूद है हजरत मुफ्ती साहब। मैं इनकी इजाजत से 1 मिनट के लिए आपको मुफ्ती बनाता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए। बाहर निकल के ये ना कहिएगा हम सब मुफ्ती हो गए। सिर्फ 1 मिनट के लिए सवाल मेरा है, जवाब आपने देना है। नमाज जनाजा में मुर्दा आगे और जिंदा पीछे, मुर्दे को पीछे करते हैं, जिंदा आगे हो जाए, नमाज हो जाएगी? मुफ्तियाने किराम जवाब दें, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों ने देर नहीं की कि देख के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, फौरन जवाब दे दिया। अब आपका वो जो ओहदा था खत्म हो गया, आपने जवाब बदलेंगे तो नहीं फतवा, क्योंकि इधर की हवा चलती है तो इधर का फतवा
उधर की हवा चलती है, उधर का फतवा, आजकल तो यही हाल है। आपने फतवा दे दिया कि मुर्दा आगे है, जिंदा पीछे है, नमाज हो रही है। मुर्दे को पीछे कर दें, जिंदा को आगे कर दें, नमाज नहीं होगी। क्यों? कि इमामत जिंदों की होती है, मुर्दों की नहीं होती। आप सब ने मान लिया। मेराज की रात मेरे नबी पाक आगे खड़े हैं मस्जिद अक्सा में, पीछे वो खड़े हैं जिनकी वफात हो चुकी है। जवाब चाहता हूं आपसे। आपने अभी फतवा दिया है कि मुर्दों की इमामत नहीं होती, और मेरे नबी के पीछे सारे नबी वो खड़े हैं जिनकी वफात हो चुकी है। पता क्या चला? इमामत जिंदों की होती है, मुर्दों की नहीं। मेरे नबी ने उनकी नमाज पढ़ाकर बता दिया, जिसके मुक्तदी जिंदा हैं उनका इमाम भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में पैदा हुआ नहीं, आज पैदा हुआ बात है। यही मैंने कहा। जो मिसाक के आलम बाला में हुआ है, उसका इमामत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी और नबी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या अच्छी बात की है कि नबी पैदा ही नबी होता है, नबी आकर नबी नहीं बनता, पैदा ही नबी होता है। बहरहाल, तो मैंने आपको सिर्फ जिंदगी का मकसद बताया। हुजूर सबकी इमामत कर रहे हैं, वो सब जिंदा हैं, मुर्दों की इमामत नहीं होती। ये एक झलक है। इसके अलावा जो बात आपको बतानी है कि जी जिंदा हो गया, बाखबर। लफ्ज़ नबी के माना क्या है? अरबी जबान का लफ्ज है। नबी को नबी ही कहते हैं, उसका भी तो तर्जमा करें। तो लुगत का नाम मैं बता देता हूँ, मिसबाहुल लुगात बाजार में मिलती है, या कोई और लुगत ले लीजिए, उसमें मौजूद अन्नबिय्यु अल मुखबिरु अनिल गैब। नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबरें दे। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ नबी के माना है। तो नबी को बाखबर कौन रखता है? अल्लाह ताला। तो नबी अल आलमीन के लिए रहमत है, उन सब से बाखबर है। तीसरी बात, करीब होना। मैं मिसाल दे दूं किसी की भी। नौजवान, आपका नाम? मोहम्मद हारिस साहब। इनको सफर करते हुए नजर आए, दूर एक शख्स को के करीब शेर आ गया। दरिंदा है, ये जिंदा भी है, बाखबर भी है, मगर फासला है। दौड़े हुए जाएंगे कि मैं मदद करूं, बचाऊं। जब तक पहुंचेंगे शेर अपना काम कर चुका होगा। जिंदा थे, बाखबर थे, मगर करीब नहीं थे, फायदा पहुंचा सके नहीं। नबी का करीब होना, क्योंकि वो राहिम है। और अल्लाह फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुमसे करीब है। सुभान अल्लाह। कुरान है। तो कितने करीब हैं हमें नजर नहीं आते, उनकी नूरानियत पूरी कायनात में जलवागर है। नहीं जिब्रील अमीन। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी कायनात तो उनके सामने कैसे? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम एक वक्त में कितने लोगों की जान निकालते? फर्ज कर लीजिए पूरी दुनिया में एक बहुत छोटी सी फिगर बता दीजिए अंदाजा करके। आप अगर 100 भी कहें पूरे वर्ल्ड में, एक सेकंड में अगर आप कहें 100 आदमी, तो 100 जगह पर अकेला इज़राइल मौजूद हो रहा है या नहीं हो रहा? वरना अगर वो जहाज पे जाते, और जहाज भी खास तौर पर PIA का होता तो वो इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, ना एक सेकंड आगे पीछे ना पीछे हो सकता है। तो फिर क्या होता? वो इज़राइल उनके सामने पूरी दुनिया इस तरह जैसे दस्तरखान। और नफ़हातुल उन्स किताब का नाम मौलाना जामी लिखने वाले, उसमें ये कौल मौजूद है कि उस वक्त तक कुतुब नहीं बन सकता जब तक अंगूठे के नाखून में सारी दुनिया न देखे। तो जिनका कलिमा पढ़ने वालों की ये शान है, उस नबी की कितनी शान हो। अल्लाह ताला अता करता है। हमारी इस छोटी सी पुतली से हम कितना जहान देखते हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहे वो मुख्तसर कर दे। तो नबी करीब भी है, और कुदरत कितनी है। अभी आपने सुना, नौजवान सुना रहे थे, जो आ रहा है, जो कह रहा है, पा रहा है।
یہ نہ سمجھیے گا صرف ظاہری زندگی میں قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، 500 سال کے بعد امام بوصیری پکارتے ہیں، نبی ان پر بھی رحمت فرماتے ہیں، اور کہنے والے نے سچ کہا، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو ہم بچے ہوئے ہیں ان کی رحمت کی وجہ سے، اور یقیناً وہ سراپا رحمت، ان کا وجود رحمت، ان کا نام رحمت، ان کا کام رحمت، ان کا پیغام رحمت۔ اور یاد کر لیں کہ میرے نبی کی آمد بھی اور میرے نبی کا یہاں سے پردہ فرمانا بھی، اور آج ہم سب کا ان کو یاد کرنا بھی، اگر غور کریں ہر ایک میں پیغام رحمت ہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کے سچے فرما بردار بن جائیں۔ مبارک ہو ان کو جو میلاد مناتے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ یہ تھے جناب علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میری گزارش ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر اور سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے چانسلر جناب ذل احمد نظامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب